Hello dear students, how are you all? I will hope you all are fine. I am Bhupinder Verma, your science teacher. So dear students, today we are going to start second part of chapter 2nd of class 9th science is matter around us pure. In this part we will discuss about compounds and its classification and also discuss about types of mixtures. So let's begin this part. First is compounds. What are compounds? A pure substance that composed two or more elements combined chemically in a definite ratio by mass such that they broken down into their parent elements by chemical method or chemical reaction are known as compound. वो केमिकल सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बनते हैं केमिकली इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, जिनका मास रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, एंड देर ब्रोकन इनटू देयर पेरेंट एलिमेंट्स, वो अपने पेरेंट एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय केमिकल मेथड. फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, द मास रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1:8. So every time hydrogen and oxygen combine in a fixed ratio by mass. So this is a compound and it is a pure substance. And after applying the electrolytic method, it decomposes into hydrogen and oxygen gas. So this can satisfy the definition of compound. For example, two or more elements present in a compound are called component of compound, constituent component of compound. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिससे कंपाउंड मिलकर बना है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड. For example, water is a compound made up of hydrogen and oxygen elements, and hydrogen and oxygen elements are known as constituents of water. Now, compounds are classified into two categories: ionic compound, covalent compounds. First is ionic compound. What are ionic compounds? The compound are formed due to transfer of electron by metal atom and gain of electron by non-metal atom. Transfer of electron by metal atom and gain of electron by non-metal atom to attain nearest noble gas configuration is called ionic compounds. वो कंपाउंड जिसमें मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, डोनेट करता है, और नॉन मेटल एटम गेन करता है, वो जो बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, NaCl, sodium chloride, is ionic compound made up of sodium metal and chlorine non-metal. Made up of sodium metal and chlorine non-metal. See an example. There is a sodium. Electron configuration of sodium is 2, 8, 1. Outermost shell contain 1 electron, and this extra electron is transferred to the chlorine atom, and chlorines attain this electron and complete their octet in outermost shell, complete the 8 and fulfill their requirement, form the compound NaCl. Okay students, now properties of ionic compounds. What are ionic compounds? Ionic compounds are work as a good electrolyte in aqueous or molten state. Ionic compounds are work as good electrolyte in aqueous or molten state. वो melted state और aqueous state में क्या करते हैं, ऐसा electrolyte work करते हैं. Melting point and boiling point of ionic compounds are much high. जो ionic compound है उनके melting और boiling point क्या होते हैं, quite high होते हैं. Melting point of NaCl is 800 degree Celsius and boiling point of NaCl is 465 degree Celsius. So this is a so much high value. Ionic compounds are crystalline in nature. What is the meaning of crystalline? Crystalline means have a fixed arrangement of atoms inside a crystal. एक एटम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसके एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है. सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज क्रिस्टलाइन इन नेचर. इफ वी कट द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, दे आर कट इन अ रेगुलर फैशन. एक प्रॉपर फिक्स अरेंजमेंट में कट होगा. आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर. जो आयनिक बॉन्ड है आयनिक कंपाउंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर. Salts are ionic in nature. For example, sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, and potassium sulfate are some example of ionic compounds. Next is covalent compounds. The compounds are formed due to mutual sharing of shared pair of electron between two non-metallic atoms to fulfill their noble gas configurations are called covalent compounds.
The compounds are formed due to mutual sharing of shared pair of electrons between two non-metallic atoms to fulfill their noble gas configuration. देखिए होता क्या है, इसमें जो है नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है पेयर की. वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट शेयर बिटवीन two non-metallic atom to fulfill their requirement. Here chlorine complete 8 electrons and it's also complete 8 electrons and form the covalent bond between them, mutual sharing. In example of water, hydrogen complete their duplet and oxygen complete their octet. Now properties of covalent compounds. Covalent compounds have low melting and boiling points. Covalent compounds have low melting and boiling point rather than ionic has a high melting and boiling point, but here covalent has low melting and boiling point. Covalent compounds are amorphous in nature. Covalent compounds are amorphous in nature, that means have no regular fashion and no crystalline structure. Covalent compounds are poor conductor of electricity. Covalent compounds are poor conductor of electricity, but ionic are good conductor of electricity. Now we discuss impure substance. Impure substance or say mixtures. Matter is classified into further second type, that is impure. Now impure substance or mixture. Impure substance are formed due to mixing of two or more than two pure substance. दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने पर हमारे पास क्या बनते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बनते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंस आर जनरली कॉल्ड मिक्सचर्स. जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं उन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस एज अ मिक्सचर्स, salt plus water gives solution of salt in water, that is aqueous sodium chloride. Sugar plus water gives solution of sugar in water, that is aqueous sugar solution. Air is a mixture of different gases, water vapors and dust particles, so it is also a kind of mixture. Wood is also a mixture of different compounds like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and methane. LPG is a mixture of propane, butane, etc. gases. Sand and sulfur powder and iron fillings is a kind of mixture. Now characteristics of the impure substance. क्या क्या characteristics properties हैं impure substance की. Variable composition. The constituents of the mixture are present in any ratio. अगर बात करें मिक्सचर की, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं. लाइक सैंड एंड सोल्ट मिक्स इन एनी रेशियो बाय मास. किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, 2 पार्ट सोल्ट के हो सकते हैं, 1 पार्ट सैंड का हो सकता है, 2 पार्ट सोल्ट के, 9 पार्ट सैंड के हो सकते हैं. तो कोई भी इम्प्रॉपर रेशियो हो सकता है. फिजिकल चेंज. मिक्सचर इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स डू नॉट बाइंड ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड, सो वी सेपरेट द मिक्सचर्स विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स. हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट बाइंड ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड. ये केमिकली कंबाइंड नहीं होती हैं एयर के अंदर. नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर. जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या है, मिक्सचर्स की एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर की क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट की एवरेज होती है. मतलब क्या है, देखिए NaCl प्योर जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर जो प्योर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है. हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, 1465 डिग्री सेल्सियस है. अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारा मिक्सचर बन जाएगा NaCl इन वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट लाइज बिटवीन 465 एंड 100 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों की बीच की रेंज के बीच में इसकी बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मिडवे में चली जाएगी. होमोजीनिटी. मोस्ट ऑफ मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जिनका होता है. एंड हाउएवर सम मिक्सचर आर होमोजीनियस इन नेचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. होमोजीनियस मीन्स जिसमें पार्टिकल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं. एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सारे सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन हो यूनिफॉर्म रहता है. सेपरेशन. जनरली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अप्लाइंग एनी सुटेबल फिजिकल मेथड. हम कोई भी फिजिकल मेथड लगाकर इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. लाइक फिल्ट्रेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल आयरन इज सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. हम मिक्सचर आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं.
Salt is separated from the mixture of the salt and water by evaporation method. These both are physical method. Now types of mixture on basis of their composition. On the basis of composition, mixture is classified into homogeneous and heterogeneous mixtures. What is homogeneous mixture? A homogeneous is a mixture have a uniform composition throughout is called homogeneous mixture. जिसमें जो composition है वो सारा uniform हो थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में सारी जगह इक्वल रेशो हो. जैसे हम शुगर सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें सारी जगह एक बराबर मीठा होगा. शुगर के पार्टिकल जो ऊपर और नीचे हर एक हिस्से में इक्वल होंगे. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट all. For example, mixture of salt and water is a homogeneous mixture. Mixture of sugar and water is a homogeneous mixture. Lemonade, soda water, soft drinks, etc. are the homogeneous mixture. Now, general properties of homogeneous mixture. All the solutions are example of homogeneous mixture. जितने भी solutions हैं किसका example है? homogeneous mixture के example होंगे. Particles of homogeneous mixtures are less than 1 nanometer in size. इसका जो particle size है less than 1 nanometer होगा. That means 10 to the raised power minus 9 मीटर से छोटे होंगे. Homogeneous mixture do not show Tyndall effect. ये Tyndall effect show नहीं करते हैं. That is they do not scatter the light passing through them. ये अपने बीच में पाथ में आने वाली लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे और इजीली उसमें से क्रॉस जाने देंगे. नो पाथ इज विजिबल, इसमें कोई पाथ विजिबल नहीं होगा. बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. जो पार्टिकल ऑफ मिक्सचर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटे हैं, इसी वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती है. द बाउंड्रीज ऑफ द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड. जो बाउंड्रीज है सॉल्यूशन पार्टिकल की, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दो कंपोनेंट हैं उनकी जो है बाउंड्रीज डिफ्रेंशिएट नहीं होते, दोनों सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. ईजिली आप देख नहीं सकते उनको अलग अलग. कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंप्लीटली मिसिबल. उसके जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिसिबल होते, पूरी तरह से एक दूसरे में मर्ज होते हैं, घुले हुए होते हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द सीन ऑफ नेक्ड आई. इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही नेक्ड आई से देख सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डीकेंटेशन मेथड. जो कॉन्स्टिट्यूएंट है होमोजीनियस मिक्सचर ना तो उसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ना ही डीकेंटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. नाउ अलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. अलॉयज भी किसके एग्जांपल हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रोंज, सोल्डरिंग अलॉय आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और one metal or one non-metal also. Alloys are those homogeneous mixtures that constituents are not separated by any physical method. ये important point है. Alloys only वैसे homogeneous mixture है जिसके constituent को हम किसी भी physical method से separate नहीं कर सकते हैं. Next is heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is a mixture in which the composition is not uniform throughout the mixture. जिसमें composition uniform नहीं होता, random होता है. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सोइल एंड वाटर, जिसमें सोइल नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रह जाएगा. मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा ऑफ ब्लड. ये हमारे क्या हैं? हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं. नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. मोस्ट ऑफ मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉयज. सॉल्यूशन और अलॉयज को छोड़कर बाकी सारे क्या हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में. द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आइडेंटिफाइड ईजिली. इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर सेपरेटेड इजीली बाय फिल्ट्रेशन मेथड बिकॉज हेट्रोजीनियस इन नेचर. एंड द पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोन मीटर. इसके बीच में इसकी पार्टिकल साइज होता है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. दैट इज दे स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू दैम एंड द साइज देयर पार्टिकल साइज इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट. इसका कारण क्या है? पार्टिकल साइज बड़ा होगा. अब होता क्या है देखिए, इसके पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि लाइट की बीम को स्कैटर कर देता है ऑल डायरेक्शंस में. दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ light. Reflect the light in all direction and the path of the light is visible in that kind of solution. Okay students, I hope you understand this part of the chapter. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.